वेलकम टू डाइस क्रांति। जहां हम कुछ दोस्त मिलकर डंजन्स एंड ड्रैगन्स यानी D&D खेलते हैं। हम में से एक इंसान होता है डंजन मास्टर यानी कि डीएम। जिसके लिखे गए कहानी में बाकी सारे प्लेयर्स खेलते हैं। ये DM इस गेम का स्टोरी टेलर है। इस स्टोरी में होते हैं मॉन्स्टर्स, दुश्मन एंड अलग अलग टाइप के चैलेंजेस। प्लेयर्स जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हर एक्शन का आउटकम डिसाइड करेंगे ये डाइस। डाइस पर अगर हाई नंबर आया तो सक्सेस, वरना फेलियर। डीएम इस सिचुएशन में एक रेफरी या अंपायर के तरह होता है। और स्टोरी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लेयर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डाइस क्रांति। Let's start the game, which is Gunda Raj. It is morning time right now in the city of Mumbai. People are getting ready to get to work. The local trains are packed. The roads are trafficked. Sundara Kutappan, how does your day start? What do you do? How do you look like? Give us a background and let us know what your morning routine is. Okay, so my name is Sundara Kuttappan. With love, I am also called Adipulyanna, which is the name of my famous restaurant, which has now newly started in Mumbai. I have more famous in the south. We are setting up restaurant. It has been like 1 week, approx, little bit. I wake up, pray to all gods, or Balaji Krishna and all of that. Make sure logistics of our white gunpowder, which is secretly cocaine, is in stock. Everyone's customer's favorite dish. Police can't tell difference, forensics can't tell difference whether it is chutney or cocaine. Logistics are checked. I go big smile, friendly greet all customers, little bit press conference here and there, take cameras, be humble, all of that, and then go back to the factories, check the manufacturing. Busy day for me basically. Okay. But I try to check all my operations, restaurant and underground. All right. So as you are going back to your factory and just checking on your operations, your assistant just comes in to your cabin and hands you a letter and says that an unknown person just dropped it off and said that it was to be specifically delivered to you. Could you just read the message that I had sent you? डोसा हमेशा क्रिस्पी होना चाहिए और आज रात तुम हेडक्वार्टर्स पर पहुंच जाना चाहिए. Signed, Kabira Singh. I agree with dosa being crispy. Yes. No, this is this name familiar to me? Yes, all of you guys know that Kabira Singh is basically let's just say he's the godfather of the Mumbai underworld. He's the boss of all bosses. You all in the end report to him. Every illegal activity and every illegal money goes through Kabira Singh, and he has update of every single thing that's happening in the Mumbai underworld. We come to Bankelal Chattopadhyay. How does your day look like in the morning? And who is Bankelal? भाई साहब, हमारा दिन तो अच्छा ही रहता है. आप बताइए आपका दिन कैसे चल रहा है? हम तो छोटे आदमी हैं. वैसे कहने को हमारा नाम वैसे बनके नहीं है, बांके है, बट आप अगर बनके कहना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं, बनके लाली होगा. हम अब क्या बताएं, हम तो छोटे आदमी हैं, हम तो काम कर देते हैं, छोटा मोटा चलते फिरते जो भी मिल जाता है हम उसकी मदद कर देते हैं. हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम क्या अपने बारे में बताएं. हम तो बस थोड़ा मोटा काम कर लेते हैं. हम जो सरकार ऊपर से बोलेंगे सर हमें बोलते हैं, हम तो कर देते हैं. आप बताइए और क्या चल रहा है, बताइए. हाँ, वो चाय आ रही थी, पता नहीं हमारी, हम तो चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं तब से, हमारी चाय ही नहीं आई. हाँ, तो as you are sitting at your desk waiting for your chai, a guy comes up with the chai as well, like the usual tea guy. He comes up to your desk, hands you the tea and also says, अरे चट्टोपाध्याय जी, ये लेटर आपके लिए कोई तो एक आदमी ऑफिस के बाहर छोड़ के गया था, बोले छोटू चाय के साथ ये भी पहुंचा दो अंदर. As you get the letter and you open it, read the message that I had sent you. बढ़िया है. कुछ किसी अच्छा बड़े साहब ने लेटर भेजा होगा शायद. देखते खोल के देखते हैं. आजकल कोई लेटर वैसे भेजता तो नहीं है, व्हाट्सएप पे बातें होती हैं, बट पता नहीं. पैसा खाओ, मौज मनाओ, आज रात तुम हेडक्वार्टर्स पहुंच जाओ. साइंड कबीरा सिंह. ओ हो, बाप रे. आप जानते हैं कबीरा साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े खास आदमी हैं. हम उनके लिए हमने बहुत बड़े काम किए हैं. वैसे मतलब डायरेक्टली नहीं किया है मैंने उनके लिए कुछ भी, लेकिन हमारी पहुंच है वहां तक. आप हाँ सर, ठीक है. मेरे को बाकी लोग का भी चाय देना है सर. मैं थोड़ा क्लियरली नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग. द छोटू जस्ट वॉक्स अवे. चाय भाई अर्जुन, हाउ डज योर डे लुक लाइक? हु आर यू? तो भाई नाम मेरा है अर्जुन, है ना. और दिन की शुरुआत होती है एक मस्त कड़क चाय के साथ. ठीक है, फिर अब मैं निकलता हूँ सुबह, अपना लोकल पकड़ते सीधा लटकते हुए पहुंच जाते हैं हम लोग साउथ मुंबई, जहाँ पे है
पैसे वाली पब्लिक, और हमारा नेटवर्क बहुत तेज है उधर। तो मेरे ऐसे चंटर पंटर चिंटू मिंटू लोग हैं जो घूमते रहते हैं, खबर लेके आते हैं हमारे पास, बताते हैं कि भाई आज बड़ा हाथ मारने को मिलेगा। फिर शाम होते होते जब मेरी टपरी बंद होती है, उसके बाद निकलता हूँ मैं अंधेरे में, अंधेरी तक पहुँचते हैं, और फिर भाई बड़ा हाथ मारो और वापस लास्ट लोकल पकड़ के घर पे वापस सीधा। सो जैसे शाम को यू आर रिटर्निंग लास्ट वाली लोकल पकड़ के, द पूरा ट्रेन का डब्बा खाली है, देयर इज नो वन एल्स इनसाइड, बट एक आदमी बस कोने में बैठा है जो तेरे पास आता है एंड ही हैंड्स यू एनवलप एंड देन गेट्स डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन। कुड यू रीड द मैसेज दैट आई हैड सेंट यू? एक स्पेशल चाय अदरक के बिना, आज रात तुम हेडक्वार्टर्स पे मिलना, साइंड कबीरा सिंह। भाई अदरक के बिना वाली चाय तो मतलब वैसे ही मैं बनाता रहता हूँ क्योंकि बजट कम है आजकल थोड़ा, तो ले चलेंगे थर्मस में ले चलेंगे चाय। ओमकार नागतोड़े, हाउ डज योर डे लुक लाइक? टेल अस अबाउट योरसेल्फ। जय महाराष्ट्र। अभी आजकल वडील का ये चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, तो अपन को क्या है, इलेक्शन में बहुत बिजी है, तो थोड़ा जाके हेल्प करना पड़ता है इधर उधर। अभी यहाँ पर सब लोग को मराठी आता नहीं, भी क्या बोलूँ, थोड़ा हिंदी में बात करना पड़ रहा है। यहाँ पर सीख लो भाई, यहाँ पर रहते हो ना। अभी इलेक्शन का ही काम चल रहा है, जाके थोड़ा एक दो लोगों को धमकाना है, वो वोट नहीं दे रहे, थोड़ी बहुत वो स्विच करानी पड़ती है, वो ठीक है, वो कर लेंगे हम लोग। अभी जाके आएगा, अभी वो रमेश है। So as you're waiting for Ramesh, he arrives on his Pulsar 220. बोलता है अरे ओमकार भाई एक मिनट, ये जाने से पहले ये देख लो यार, आपके लिए कुछ अर्जेंट लेटर मेरे को रास्ते में पकड़ा किसी आदमी ने, बोला ये भेज दे दो ओमकार भाई को। बोला हाँ भाई उनके घर पे जा रहा हूँ मैं, तो दे देता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला हाँ पहुँचा दो, तो ये एक बार देख लो भाई, फिर निकलते हैं अपन। ही हैंड्स यू द लेटर एंड would you read the message that I had sent you? रोज मिसल पाव खाओ, आज रात हेडक्वार्टर्स आ जाओ, साइंड कबीरा सिंह। ये तो इम्पोर्टेंट बंदा है, इससे बात करना पड़ेगा, इसके पापा के इलेक्शन के लिए काम आएगा ये बंदा। अरे भाई ये फिर तो इम्पोर्टेंट है, फिर ये कभी क्या मतलब क्या सीन? काम फटाफट खत्म करते हैं, निकलने का अपने को। चलो पलटी चलो लेने के चलो। बाद He kicks his pulsar and you both head over with hockey sticks in hand. Now it's late evening. शाम का समय, ऑलमोस्ट 8-9 बज रहे। आई अज्यूम यू गाइज आर गेटिंग रेडी टू हेड टू दी headquarters where you've been ordered to come. All of you guys almost arrive at the same time. गेट के यहाँ पर it's सी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है मुंबई के यहाँ पर, एंड उसके एंट्रेंस पे आई वुड से ऑल 4 of you guys just arrive at the same time. And since all of you are kind of involved in the same activities, जान पहचान है थोड़ी बहुत, एटलीस्ट नाम से, चेहरे से। एज यू लाइक रीच द एंट्रेंस, देयर इज अ लाइक अ ह्यूज बाउंसर गाय हु जस्ट सेज ए किधर जाने का है? हाँ भाई साहब, और कैसे आप? बढ़िया सब? हाँ सब बढ़िया, लेकिन तुम यहाँ किधर जाने का किधर है? मैं आपका गला ठीक है क्या? चाय चाहिए क्या आपको? अरे आज एकदम फर्स्ट क्लास है, कल ना थोड़ा बैठ गया था, आज एकदम बेटर है। सेठ ने बुलाया अपने को, कबीरा सिंह। ओह हाँ पता है, आने वाले थे 4 लोग आज। जाओ अंदर, ग्राउंड फ्लोर पे जाना, बॉस रुके आपके लिए। एंड एज यू एंटर द बिल्डिंग, इट्स अ वेरी पॉश लुकिंग, एकदम मस्त, एकदम 5-star होटल जैसा दिख रहा है। इट्स लाइक ह्यूज लॉबी, there's 10 elevators, 5 on each side, and as the bodyguard told you, you have to head down to the lowest level, the ground floor. So on the indicator you see that you are on G floor, and then it goes -1, -2, -3, -4. It goes till -10, and it says on like in bold letters headquarters. The lift opens up and you enter this pristine looking office. It has like very amazing ऐसा leather का chairs है, very well lit, बहुत मस्त carpet है. On the other end right now in the image that you see, it has a TV. वो actually TV नहीं है, it's like a window outside, and just imagine that outside the window all you see is like a very dark blue kind of a color. On a chair तुम लोग की तरफ back करके there is someone sitting. You hear his voice saying, आ गए तुम लोग, बहुत समय से रुका था अरे मैं। कबीरा सेठ कैसे? अरे कबीरा स्पीकिंग। ये काफी पुराना जोक है। नमस्कारम कबीरा सर, नमस्कारम। आज हाय हेलो नमस्कार करने का टाइम नहीं है। मैं बहुत क्या हो गया कम सर? लोगों को इस खुफिया जगह पर बुलाता हूँ, और उससे भी कम लोग इस खुफिया कमरे से बाहर निकल पाते हैं। He turns around and you see older man. He's like very sharply dressed,
मस्त कपड़ा, एकदम मस्त सूट है, 3 पीस सूट, बट उसका शूज थोड़ा सा ऐसा ऑफ लग रहा है, लाइक इट डजंट गो विद द एंटायर वाइब। ही सेज तुम सोच रहे होगे कि आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, एंड हिज वॉइस एकोज इन द एंटायर रूम। जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन तुम चारों लालची, तुम जरूरतों से ज्यादा फालतू चीजों के पीछे भागते हो, और इससे हमारा बिजनेस पर असर होने लगा है। एंड ही पॉइंट्स टुवर्ड्स बनकेलाल चट्टोपाध्याय। इसलिए चट्टोपाध्याय लगता है आजकल कोई और तुम्हारे गाय को चारा खिला रहा है। 6 महीने और 6 लाख बीत गए, हमारे कसिनो के कंस्ट्रक्शन की परमिशन अब तक क्लियर नहीं हुई। अरे सर, क्या सरकार, आप समझते हो ना, हम कोशिश जारी करके रखते चुप हैं, हो हम जाओ। जानते हैं ये सरकारी काम। बात करने का समय अब खत्म हो चुका है। अडिपोली अन्ना आपको कितने बार कहा है कि व्हाइट गन पाउडर के ट्रक्स हमारे वेयरहाउस से होते हुए निकलेंगे, लेकिन फिर भी आप खुद के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना रहे हो नए नए। कमाल है। सर अपॉलॉजीज, लॉजिस्टिक्स को बोला था मैंने, बट उन लोग अब बहुत राउडी एंड प्राइडफुल है। आई हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स, आई विल फिक्स सिचुएशन वेरी क्विक। फिक्स तो अभी मैं करूंगा तुम्हें। ही टर्न्स टुवर्ड्स ओमकार नाकतोड़े एंड ही सेज, तुम्हारी लापरवाही और बेवकूफ़ी की वजह से हमारे काम पर असर होने लगा है, और ये चीज़ें तो तुम अपने बाप को बताकर नहीं करते, तो अब तुम्हारे पिताजी और मैंने तुम्हें सबक सिखाने का सोचा है। काय 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 है? करता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या मैंने क्या किया? बाप को ही तो पावर में रख रहा है मैं। आएगा समझ में, सब आएगा। और तुम चाय भाई आजकल बड़े हाथ मारने लगे हो, इतना कि अनसैंक्शन चोरियां करने लगे हो। क्या सोचा मुझे समझेगा नहीं? अरे भाई वो खर्चा पानी थोड़ा निकालना पड़ता है ना, मतलब ऐसा अपना, अच्छा अपना भी तो रोजी रोटी चलाने का है ना अपने को, ऐसा चुप! मतलब। Kabira Singh stands up. I mean, he's still standing. He kind of taps his right foot on his left heel. The floor where you all 4 of you guys are standing, it kind of starts opening up, and he says, "तुम्हें यहाँ कोई याद नहीं रखेगा। अगर तुम याद रखना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है।" And नीचे there is like very bright white light, and all 4 of you just fall downwards, and there's like bright light all around you as you're falling, and you're just falling through it non-stop. A few seconds later you just fall hard on the ground. आजू बाजू there's all grass, open pastures है, trees है, हवा बह रही है, ऐसा काफ़ी अच्छा vibe है, full open ground kind of a thing. You realize that you are not in Mumbai anymore. And that's it for this episode. If you like D&D, then make sure to subscribe to our channel so you never miss the next upload.